اعضاء کی کہانی اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت ہم آپ کو سنا رہے ہیں ناک کی کہانی خود اس کی زبانی۔ اس کا پہلا حصہ پیش کیا جا چکا، دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ پھیپھڑوں کے لیے مطلوبہ ہوا کو مرطوب بنانا خاصا مشکل کام ہے۔ مجھے ایک دن میں تقریباً 1/4 گیلن نمی اپنے ذرائع سے حاصل کرنا ہوتی ہے۔ چپچپی رطوبت کی شکل میں یہ نمی میرے نتنوں میں بچھی ہوئی جھلی یعنی میمبرین تیار کرتی ہے۔ اس رطوبت کو میوکس کہا جاتا ہے۔ اگرچہ صفائی کا کام نتنوں میں اگے ہوئے نادیدہ بالوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کام کے آخری مراحل رطوبت ہی کے ذریعے سر انجام پاتے ہیں۔ جو بیکٹیریا، وائرس، جراثیم، مٹی اور دھوئیں کے ذرات بالوں کے جنگلوں سے بچ نکلتے ہیں، وہ آخر کار اس رطوبت سے چپک جاتے ہیں جو میرے دونوں نتنوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں سے بیشتر نقصان دہ اجسام تو یہیں فنا ہو جاتے ہیں۔ سخت جان یا چالاک قسم کے جراثیم جو اندرونی حصوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کے لیے دوسرے متبادل انتظامات موجود ہیں۔ مثلاً ایسی صورت میں دماغ کی ہدایات کے مطابق میرے اندرونی حصوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے، پھر اچانک پھیپھڑوں میں زیادہ مقدار میں ہوا بھر جاتی ہے اور یہ ہوا کئی 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے میرے حساس علاقوں سے گزرتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے۔ یہ تیز رفتار آندھی اپنے ساتھ ہر قسم کے خطرناک جراثیم کو باہر کی فضا میں اڑا لے جاتی ہے۔ چھینکتے وقت ناک، منہ پر رومال رکھیں یا زمین سے قریب ہو کر چھینکیں تاکہ خطرناک جراثیم دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ چھینکنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا اس لیے بھی آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ چھینک ان تمام جراثیم کو باہر نکال دیتی ہے جو آپ کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں اور کسی دوسرے ذریعے سے باہر نہیں نکلتے۔ رطوبت کی یہ طے ہے، اگر مناسب وقفوں سے صاف نہ کی جائے تو میرے اندر آلودگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری جھلی ہر 20 منٹ کے بعد رطوبت کی ایک نئی تہ تیار کر کے دونوں نتنوں میں پھیلاتی رہتی ہے۔ پرانی تہ صاف کرنے کے لیے میرے پاس صفائی کا جدید ترین مائکرو اسکوپک نظام موجود ہے۔ یہ نظام سیلیا کہلاتا ہے۔ دراصل یہ بے حد ننھے منھے بال ہیں جو لاکھوں تنکوں والی جادوئی جھاڑو کی طرح اس گندگی کو سمیٹ کر میرے عقبی حصے کے راستے حلق میں گراتے رہتے ہیں۔ حلق کے ذریعے یہ گندگی معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ معدے میں موجود طاقتور تیزابی مادے اسے منٹوں میں جلا کر ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ سیلیا نامی یہ انتھک کارکن بوقت ضرورت 1 سیکنڈ میں 10 مرتبہ حرکت کرتے ہیں اور گندگی کو حلق میں گرانے کے بعد دوبارہ واپس اپنی جگہ پر آ کر پوزیشن سنبھال لیتے ہیں۔ صفائی کا یہ کام دن رات جاری رہتا ہے، لیکن آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔ البتہ سخت سردی میں صفائی کا یہ نظام کسی حد تک منجمد ہو جاتا ہے۔ ایسے میں یہ رطوبت حلق کی طرف جانے کے بجائے باہر کا رخ کرتی ہے اور آپ کی ناک بہنے لگتی ہے۔ آپ کو جراثیمی حملوں سے بچانے کے لیے ایک اور نظام بھی میری مدد کرتا ہے۔ یہ نظام لائسوزائم نامی رطوبت ہے۔ یہ لائسوزائم نامی رطوبت ہے، وہی شفاف جراثیم کش سیال مادہ جو آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی آنسو، قدرت کا ایک عظیم تحفہ۔ ہوا کو پاک صاف اور ایک خاص درجہ حرارت پر گرم رکھنا بڑا مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ یہ کام میں زیادہ تر اپنی مخصوص ہڈیوں کی مدد سے انجام دیتی ہوں۔ یہ 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی ہڈی 1 انچ لمبی ہوتی ہے۔ یہ تینوں ہڈیاں میرے نتنوں کی دیواروں سے منسلک ہیں اور میرے لیے کسی ریڈییٹر کا کام کرتی ہیں۔ ان ہڈیوں کو خون کی زیادہ مقدار فراہم کی جاتی ہے تاکہ یہ اضافی توانائی حاصل کر سکیں۔
मेरा एक और बेहद अहम काम खुशबुओं और बदबू को पहचानना है। दूसरे आम लोगों की तरह आप भी 4000 खुशबुओं को अलग अलग पहचान सकते हैं। ज़्यादा हसास लोग तकरीबन 10,000 खुशबुओं को पहचानने की सलाहियत रखते हैं। हकीकत यह है कि मेरी बहुत सी सलाहियतों का इल्म आपको कभी हो ही नहीं सकता। मेरी इन सलाहियतों का एहसास सिर्फ क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद कर सकते हैं। ऐसे अफराद मुख्तलिफ अशिया को सिर्फ खुशबू के ज़रिए शनाख्त करते हैं। मैं खुशबुओं को किस तरह अलग अलग पहचानती हूँ, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। ये पुरस्रार निज़ाम आपके दोनों नथनों की छत पर नस्ब है। ये हसास आलात डाक के एक छोटे से टिकट के बराबर हैं। जर्दी माइल कत्थई रंग के ये बाफ्ते नथनों के ऊपर लगे हुए हैं। इनमें से हर टिशू कुदरत की सन्नाई का अजीम शाहकार और इंसान के लिए एक जिंदगी बख्श तोहफा है। एक टिशू में तकरीबन 1 करोड़ खुलिये पाए जाते हैं और हर खुलिये से 6 से 8 नन्हे मुन्ने बाल निकले हुए हैं। ये नाजुक बाल खुशबुओं की लहरों को वसूल करने वाले एंटीना का काम करते हैं और बराह रास्त दिमाग के मातहत खिदमात सरअंजाम देते हैं, जो उनसे फ़कत 1 इंच के फासले पर वाक़ है। ये किस तरह काम करते हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। साइंसदान अभी इस पुरस्रार निज़ाम को समझने से कासिर हैं। अभी तक जो कुछ भी कहा गया है वो महज नज़रिए हैं। इनमें से एक नज़रिया ये है कि अशिया अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स खारिज करती हैं। सालन पकता है तो इसके मुख्तलिफ अज्जा के मॉलिक्यूल्स हवा में शामिल हो जाते हैं और आपकी नाक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लोहे की जंग आलूद ठंडी सलाख से आने वाली बू को आप क्या कहेंगे? एक ख्याल ये भी है कि हसास खुलिये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के साइज और शक्ल को पहचानते हैं और इस तरह हर खुशबू या बदबू को अलग अलग शनाख्त कर लेते हैं। बहरहाल किसी भी तरह सही, ये हसास एंटीना खुशबू या बू को महसूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन खुलियों में एक हल्की सी बरक़ी रौ पैदा होती है और दिमाग में सरायत कर जाती है। दिमाग का मुताल्लिक़ा हिस्सा इस बरक़ी सिग्नल को डिकोड करता है और आपको मालूम हो जाता है कि ये ताज़ा गुलाब की खुशबू है या चंबेली की महक। मेरा शुमार आपके जिस्म की बालाई सरहदी इलाकों में होता है। मोहलिक जरासीम और बैक्टीरियाज के लिए यहाँ से हमला करना निस्बतन आसान है, चूँकि वो हवा में तैरते रहते हैं और सांस के साथ बाआसानी अंदर दाखिल हो जाते हैं। मसलन तिपदिक, सिल और सिफसिल के जरासीम तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, यानी टीबी। अगर इनका हमला कामयाब हो जाए तो ये मेरी शक्ल बिगाड़ कर रख सकते हैं। इनकी वजह से मेरी अंदरूनी झिल्ली में फोड़ा या फुंसी निकल सकती है, जिसके नतीजे में हवा की गुजरगाह में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। इन्हीं असबाब की बिना पर मेरे साइनसिस मुतासर होते हैं और दूसरे तकलीफदेह असरात रूनुमा होने लगते हैं। तंबाकू का धुआं और गर्द के ज़र्रात मेरी अंदरूनी झिल्ली को मुतासिर करते हैं। झिल्ली पर वरम आ जाता है और वह ज़रूरत से ज़्यादा रुतूबत पैदा करने लगती है। ये इजाफी रुतूबत हल्क में गिरने से पेचीदा मसाइल जन्म लेते हैं। अक्सर हवा की नालियों में वरम आ जाता है और वो नज़ले के सबब बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इसके असरात मेरे साइनसिस और अंदरूनी कान तक को मुतासिर करते हैं। मेरा बंद होना आपको अजीब उलझन और बेजारी से दो चार कर देता है। आप कोशिश करते हैं कि किसी तरह नाक खुल जाए। अक्सर लोग इस मकसद के लिए मुख्तलिफ इक़साम के ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं। ये कतरे आर्जी तौर पर नाक को खोल देते हैं, यानी उनकी वजह से वरम कम हो जाता है। लेकिन ये ड्रॉप्स खासे ख़तरनाक होते हैं। ये आर्जी फ़ायदा पहुंचाते हैं, मगर उनके असरात के रद्द अमल में जो टिश्यूज़ पहले
सुकड़ते हैं, बाद में वो पहले से ज़्यादा फूल जाते हैं। माहिरीन इन ड्रॉप्स को शदीद नुकसानदेह समझते हैं क्योंकि इनका फ़ायदा कम और आर्जी, जबकि नुकसानात ज़्यादा और अक्सर मुस्तकिल नौइयत के हो सकते हैं। टूट फूट का अमल हर चीज़ की तरह मुझे भी मुतासिर करता है। यूं भी ये जिस्म और ये सलाहियतें तो आर्जी तौर पर आपको दी गई हैं, इनकी बतदरीज वापसी नागुज़ीर है। लेकिन आप परेशान ना हो, आपके सांसों को जरासीम से पाक गरम मरतूब बनाना बहरहाल मेरी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी मुझे इंसान के आखिरी सांसों तक निभाना होती है। हाँ, अगर आप मेरी किसी कदर मदद करना चाहें तो 5 वक्त वुज़ू करके सांसों को जरासीम से पाक और मरतूब बनाने में मेरा हाथ बटा सकते हैं। अगर दिन में 5 मरतबा मुझे ये मदद मिलती रहे तो मेरे आलात को बार बार आराम का वक्फा मिलता रहेगा और ये निस्बतन ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा बेहतर खिदमात अंजाम दे सकेंगे। अगर आप किसी दोस्त को एक नादिर व नायाब तोहफ़ा दें और वो दोस्त ज़िंदगी भर आपके तोहफ़े से फ़ायदा उठाता रहे लेकिन कभी भी आपका शुक्रिया अदा न करे, बल्कि इस तोहफ़े के ज़रिए आपके दुश्मन की मदद करने लगे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? मैं भी आपके लिए अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफ़ा हूँ जो उसने आपको मुफ्त और बेमांगे अता किया है। आप सब लोग इस तोहफ़े को ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अल्लाह के इस तोहफ़े की कदर व कीमत से वाकिफ़ हैं, और कितने लोग हैं जो तोहफ़ा देने वाले का शुक्रिया भी अदा करते हों।